Hello, dear. This is Shravan Kumar here, and welcome to your most favorite podcast channel, Vision 100 Cam. और आज once again for a weekly dose for a most awaited and a fantastic topic that is all about parenting. और जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो चाहे हमारी पर्सनल बायोलॉजिकल फैमिली हो या हमारी बिजनेस फैमिली की बात हो, देयर आर सम कोर प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स जो हमारे इस फैमिलीज़ को सस्टेनेबिलिटी या कल्चर की तरफ ले चलती है. एंड दैट व्हाट्स द फ्यूचर लुक्स लाइक. किसी ने बहुत अच्छे से कहा, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू टॉक द टॉक, इट्स अबाउट व्हाट यू वॉक द टॉक. और मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर कौन इतना अच्छा बात कर सकता है. आई कैन बेट ऑन इट, देयर कैन बी नन अदर देन our country mentors Sumit and Tanya Bahadur. Thank you, Shravan. Thank you for this warm introduction. Today, indeed, we have a very special topic to discuss. देखिए दोस्तों, being a role model for our children is something that all loving parents they want to be. सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बन सके. In fact, in the Amway guided entrepreneurship opportunity, the business owners they think of their business teams as families. And बहुत सी बार जो होता है हम उनसे सुनते हैं, very often we hear from them that whatever has helped them build their teams and run their business smoothly has also helped them become better parents. And it's also the other way around कि जो भी अच्छे parental skills they already have in their parenting playbook, वो सब चीज़ें जो हैं they prove very useful in building their Amway business strong and sustainable. In our 20 plus years in the Amway business, we have learned a lot. हम लोगों ने अपने पिछले 20 साल के अनुभव में Amway business में बहुत कुछ सीखा है, ना सिर्फ अपने बारे में और अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, but more so about what it means to be a good role model for the children, our next generation. ताकि हम लोग जो है उनके अंदर वो वैल्यूज़ डाल सके जो कि it will last them a lifetime. So today we want that these lessons that we have learned in the Amway business, they should be passed on to the next generation so that it can help inspire them to do very well in their lives. And also जो लोग already parents हैं, it should inspire them to become even better parents for their children and become better leaders for their teams. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. See, experts in child development they say that there are certain phases in our children's lives. जो एक्सपर्ट्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में वो कहते हैं कि हमारे बच्चों की लाइफ में कुछ सर्टन फेजेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे कि इन द फर्स्ट 7 years ऑफ देयर लाइव्स ऑल वी हैव टू डू इज लव देम एंड नर्चर देम. इन द सेकेंड 7-year फेज इन देयर लाइफ विच इज़ फ्रॉम द एज 8 till the age 14, उसमें वी हैव टू डिसिप्लिन देम एंड टीच देम राइट फ्रॉम रॉन्ग. एंड द थर्ड 7 years ऑफ देयर लाइफ विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट फेज, जिसमें वो टीनेज ईयर्स होते हैं उनके, उसमें what we have to do is to be just be their friends and be a good listener. और उसके बाद एक बार जब वो 21 साल के हो जाते हैं, after 21 years old, all we have to do is let them experience life and live their life, and we have to be there just as their friend and cheerleader. So one of the most important questions जो कि हमसे अक्सर पूछा जाता है, which we get asked a lot by parents, who having teenage children, is that how can they correct them or change their behavior. वो मुझसे यही पूछते हैं कि हम लोग क्या करें कि उनका बिहेवियर चेंज कर सकें, उन्हें करेक्ट कर सकें. एंड वी ऑलवेज टेल देम दैट लुक, यू कैन नॉट मेक योर चिल्ड्रन चेंज बाय द टाइम दे आर ऑलरेडी इन देयर मिड टू लेट टीन्स और अर्ली 20s. इस थर्ड फेज में आप अपने बच्चों को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते. ठीक उसी तरह से जैसे कि यू कैन नॉट मेक योर हस्बैंड और वाइफ चेंज आफ्टर मैरिज. यू कैन ट्राई टू change them ऊपर से at the periphery, but you cannot change their core, what is inside of them. However, the good news is that we can always improve our relationship with them and influence them. हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, influence कर सकते हैं अपनी relationship उनके साथ improve करके. So while you cannot make them change, you can actually change yourself and how you behave with them or how you behave around them. क्योंकि उससे क्या होता है कि when we change as individuals, our children often change in response to our change. Becoming better human beings, जब हम अच्छे इंसान बनते हैं ourselves, that creates a new cycle which leads to a healthier relationship with the people around us. Therefore, it gives us better influence on the people close to us. So while we cannot make our elderly children change, वी कैन बी बेटर एग्जाम्पल्स फॉर देम. हालांकि हम लोग जो है अपने बड़े बच्चे जो हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, बट हम उनके लिए एक बेहतर उदाहरण बन सकते हैं.
and that generally leads to better things for everyone, you know. So इस podcast में, you know, I'll discuss about the things that being in the Amway guided entrepreneurship business has taught us about how to be a better leader, how to be a good role model, ताकि our children and our teams can look up to us. तो ऐसी कौन सी critical role model qualities हैं which we want to actually duplicate or imbibe in our children's and also help us in the business, आइए उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है एम्पैथी यानी सहानुभूति। देखिए दोस्तों, आज हर आदमी अपनी अपनी लाइफ में चैलेंजेस से जूझ रहा है। बिग और स्मॉल, वी ऑल आर फाइटिंग आवर ओन चैलेंजेस इन लाइफ। लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर, यू नो, अप एंड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, without any warnings. This is human life. And this understanding that we are all fighting our own challenges, this is where empathy, understanding comes in, you know. जब हम sensitive होते हैं, you know, towards people around us, when we are attuned to somebody's emotions, जब हम किसी के emotions को भाप लेते हैं and we are compassionate towards them, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो संवेदनशीलता होती है उसी को हम लोग जो है empathy बोलते हैं। When we empathize with the children, when we talk to them about their feelings, कि तुम्हें किस चीज़ से डर लग रहा है, what are you feeling scared of, or how are you feeling in different situations, and we try to understand why they feel this way, and we help them to process their difficult emotions and feelings, you know, about things and people, तो क्या होता है कि in observing, listening and trying to understand our children, we actually make them feel like they are being heard. हम उन्हें सुन रहे हैं। वी आर प्रैक्टिकली शोइंग देम दैट लुक, वी आर देयर फॉर यू, वी केयर अबाउट यू, वी आर विलिंग टू लिसन टू यू, और हमारे लिए आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका नज़रिया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एम्पैथी हम लोग अपने बच्चों की तरफ दिखाते हैं, हमारे बच्चे जो हैं देन दे कॉपी दिस बिहेवियर दैट वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, और उससे क्या होता है कि बच्चे भी वही चीज़ सीखने लगते हैं। द किड्स स्टार्ट लर्निंग ऑल्सो अबाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट इट इज़ टू बी इन समवन एल्सेस पोजिशन। वो ये समझना शुरू कर देते हैं बच्चे कि उनके आसपास जो और लोग हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है, यू नो। और इस सबसे क्या होता है कि बच्चे जो है अल्टीमेटली दे बिकम मोर कंपैशनेट इन देयर एक्शंस टुवर्ड्स अदर पीपल। तो दोस्तों, मैंने ये देखा है कि बीइंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर पीपल by listening, seeking to understand them is one of the most important and very powerful qualities जो कि हमें हमारे एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम करती है। क्योंकि हमारे बिजनेस में, इन आवर इंडस्ट्री, आवर बिजनेस इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज आवर एबिलिटी टू कनेक्ट एंड रिलेट विद पीपल। हमारा बिजनेस, हमारी बिजनेस टीम्स, हमारा नेटवर्क उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितना हमारी क्षमता है लोगों के साथ कनेक्ट करने में और उनके साथ रिलेशनशिप बनाने में। Without being empathetic, बिना एम्पैथी के, there is no way of truly understanding what people around us are going through in life, वो लाइफ में किस दौर से गुजर रहे हैं, and we will never be able to inspire them to work alongside us. So growing our Amway guided entrepreneurship business all comes down to being a good listener and leading with your heart with compassion. इसे compassionate leadership बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट। देखिए, वी ऑल वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो दूसरों को आदर देना सीखें। एंड द ओनली वे वी कैन डू दैट इज़ बाय ट्रीटिंग आवर चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट दैट दे डिज़र्व। और हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने बच्चों को खुद वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत देंगे जो कि वो डिज़र्व करते हैं। बहुत सी बार क्या देखा है मैंने कि वी स्कोल्ड द चिल्ड्रन, हम बच्चों को डांट देते हैं, नो, व्हेन दे डोंट डू व्हाट वी वांट देम टू डू, यू नो। जैसे कि हम लोग जो है ग्रोसरी स्टोर में खड़े हुए हैं और हम लोग लाइन में लगे हुए हैं ना टू पे समथिंग, और बच्चा जो है वो यहाँ वहाँ कुछ देख रहा होता है। हम चाहते हैं कि वो हमारे पास खड़ा हो जाए। वी वांट आवर चाइल्ड टू स्टैंड नेक्स्ट टू अस एज वी आर चेकिंग आउट इन अ ग्रोसरी स्टोर, बट देन दे आर डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग दैट सीम्स इंटरेस्टिंग टू देम। वो किसी ऐसी चीज़ में चले जाते हैं, खो जाते हैं जो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बिकॉज बच्चे जो होते हैं दे ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। They also have their own interests and own fascinations. So as an individual, they deserve to be treated with respect instead of being scolded all the time. हमें भी उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देना होता है बच्चों को, and we have to be a little bit understanding instead of all the time उनको डांटते रहें। So by valuing our children's choices, जब हम अपने बच्चों की चॉइसेस जो होती हैं, उनके जो चुनाव होते हैं दिन के, उनको वैल्यू देते हैं,
We are honoring their interest. We are speaking politely and firmly with them. We are allowing them to take some independent decisions without imposing our own will. Then we are basically giving respect to our children. And when we do all this thing, what are we doing? We are giving them acceptance. We are giving them a feeling of maturity and responsibility. And that is what leads to responsible behavior and better decision making in our children. So दोस्तों, in our Amway business environment also मैंने देखा है कि जब हम दूसरे लोगों को respect देते हैं, when we give respect to our team, our business partners, that goes a long way in building their self-image and also helps them develop into the business leaders. और ये सब जो होता है, it happens naturally because we have taken time to understand our business partners' needs and wants. We are being respectful to our business partners, our leaders. हमारे बिजनेस में एक मंत्रा है कि ऑलवेज ट्रीट अदर्स लाइक हाउ यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड. आप हमेशा लोगों के साथ वही बर्ताव करें जैसा कि आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें. एवरीवन इज़ डिफरेंट. वी ऑल हैव आवर ड्रीम्स एंड गोल्स. लेकिन जब हम और लोगों को ट्रीट करते हैं अपने नेटवर्क में विद प्रॉपर रिस्पेक्ट, दैट बिल्ड्स हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड ब्रिंग्स आउट द एब्सोल्यूट बेस्ट इन एवरीवन इन योर टीम. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बिजनेस में व्हेन वी ट्रीट समवन विद रिस्पेक्ट कि वो भी हमारे को वही रिस्पेक्ट वापस देगा इमीडिएटली. नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर ट्रीटिंग देम विद रिस्पेक्ट बट दे टेक सम टाइम टू वार्म अप टू अस. तो ऐसे टाइम पे इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि वी कैन ओनली कंट्रोल आवर ओन रिएक्शंस एंड हाउ वी कंडक्ट आवरसेल्व्स. प्लस वी शुड ऑल्सो रिमेंबर कि जो भी हम लोग करेंगे, हमारे बच्चे हमें वॉच कर रहे हैं, वो भी हमसे सीख रहे हैं एंड दे विल ऑल्सो कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग एज वॉट वी आर डूइंग ऑल द टाइम. तीसरी चीज़ है हार्ड वर्क. वी ऑल वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क बिकॉज एज वी ऑल नो कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर वी आर ऑल मेजर्ड बाय आवर एक्शंस एंड द रिजल्ट्स, नॉट बाय आवर बिग वर्ड्स. हम लोग क्या बोलते हैं वो कोई लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन हमारे एक्शंस और हमने अचीव क्या किया है उस पर लोगों का ध्यान जाता है हमेशा. सो हार्ड वर्क इज़ वॉट सेपरेट्स दोज दैट आर सक्सेसफुल फ्रॉम दोज हु आर ऑलवेज जस्ट डे ड्रीमिंग एंड नेवर डूइंग एनीथिंग. हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी एक बार कहा था कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन वी हैव टू बर्न लाइक अ सन ऑल्सो. अगर हम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो हमें सूरज की तरह तपना भी होगा. So hard work doesn't just help your child to achieve success, but it also helps your children to develop their personality and in their all-round development. बहुत सी बार क्या होता है, पेरेंट्स फील that their children are lazy and they don't want to work hard. ऐसा नहीं होता, it's not like that. When children become discouraged or they become disillusioned or frustrated with hard work, it is usually because उनकी जो environment है और उनके जो पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं पर वो उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे रहे हैं. Parents are responsible for their children not working hard because sometimes they overindulge them or they are not setting the right examples. बच्चों की प्रॉपर कंडीशनिंग जो होती है वो तभी हो पाती है जब वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो खुद अपने गोल सेट कर रहे हैं, उनकी तरफ काम कर रहे हैं. When the parents are setting goals, working towards them. बहुत सी बार क्या होता है कि many times parents want their children to be hardworking, but they are not themselves doing the work and they're also just whiling away the time watching too much TV or spending too much time on their phone, social media वगैरह वगैरह. तो बच्चे ये ऑब्जर्व कर लेते हैं. याद रहे कि गुड रोल मॉडल्स नेवर टेल मच बट दे ऑलवेज ओनली कीप शोइंग यू. जो अच्छे रोल मॉडल्स होते हैं वो बिहेवियर से आपको सिखाते हैं, वो बातों से नहीं सिखाते सिर्फ. सो वॉट एवर वर्क यू ऑल पुट ऑन अ डेली बेसिस टूवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स एंड गोल्स इन द एमवे बिजनेस, वही एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है आपके बच्चों के लिए कि वॉट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू रीच देयर ओन गोल्स, ताकि वो भी अपने अचीवमेंट्स खुद हासिल कर सकें. और ये सब तभी पॉसिबल है जब वी आर आवरसेल्व्स वॉकिंग द टॉक. हम लोग जो है एमवे बिजनेस में वी ऑलवेज हैव टू मॉडल द बिहेवियर दैट वी वांट आवर टीम बिजनेस पार्टनर्स टू डुप्लीकेट. अदरवाइज होगा क्या कि हमारी टीम जो है सूनर और लेटर वो सब काम करना छोड़ देगी जो वो देख रहे हैं कि हम अपने आप खुद ही नहीं कर रहे हैं. आवर टीम विल स्टॉप डूइंग सूनर और लेटर दैट वर्क विच दे सी दैट वी आवरसेल्व्स आर नॉट डूइंग. चौथी चीज़ जो है वो है सेल्फ डिसिप्लिन. Along the same lines, the most important strategy in good parenting is always to teach our children self-discipline. हमारे बच्चे जो है खुद को अपने आप अनुशासित कर लें, इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है. सेल्फ डिसिप्लिन तो होता है वो हमारे बच्चों को सिखाता है हाउ टू डिले द ग्रेटिफिकेशन, कि आज काम करो लेकिन रिजल्ट्स जो है वो थोड़े बाद में आएंगे. इट ऑल्सो टीचेस चिल्ड्रन टू रेजिस्ट टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि होमवर्क करते करते सडनली दे आर टर्निंग द वीडियो गेम्स
for a break or a distraction. या फिर also teaches children how to avoid unhealthy temptations like going for a chocolate when mummy is not looking. जब मम्मी नहीं देख रही हो तो फटाफट कुछ मुंह में डाल लिया चॉकलेट या कोई जंक फूड. सो बेसिकली जो बच्चे हैं ना, सेल्फ डिसिप्लिन द्वारा उनको हमें सिखाना चाहिए हाउ दे कैन टॉलरेट ऑल द डिस्कम्फर्ट्स इन ऑर्डर टू रीच देयर लॉन्ग टर्म गोल्स, ताकि दे कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स. So in order to teach children self-discipline, we have to teach them and help them develop some necessary skills like, we have to teach children how to have a structured routine, proper time to get up. सुबह उठने का एक सही टाइम होना चाहिए. There should be a proper time to play, to have food, meals, proper time to go to bed. Basically, we should help our children to have good habits, like keeping a timetable, कि घर में एक जगह पे टाइम टेबल लगा हुआ है फॉर ऑल द वेरियस डेली एंड वीकली एक्टिविटीज़, व्हाट वी कॉल टाइम मैनेजमेंट. ये बच्चों में होना चाहिए. प्रेजिंग एंड रिवॉर्डिंग देयर गुड बिहेवियर. जब भी हम कुछ अच्छा देखें उन्हें करते हुए तो उनको हमेशा हमें प्रेज करना चाहिए, रिवॉर्ड करना चाहिए उनके अच्छे बिहेवियर पे. और ये सब चीज़ें जो है सेल्फ डिसिप्लिन की, वी कैन टीच देम मच बेटर इफ़ वी आवरसेल्व्स आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड. अगर बच्चे देखते हैं कि वी आर डिलेइंग और नॉट डूइंग आवर इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ और आवर वर्क, और हम जो है वी आर ऑल्सो वॉचिंग टेलीविजन, या फिर हम चीज़ों को टाल रहे हैं, वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग द वर्क एट होम, फिर बच्चे भी वही करना शुरू कर देते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस शुड पे अटेंशन टू आवर ओन एरियाज जहाँ पर वी नीड सम इम्प्रूवमेंट, और वहाँ पर हम काउंसलिंग ले अपने बिजनेस कोच के साथ, एंड वी शुड गो अहेड एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स. और साथ साथ एनी टाइम यू गेट एनी रिकग्निशन इन द बिजनेस, मेक चिल्ड्रन ऑलवेज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, जिससे वो आपके रिकग्निशन को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं. फिफ्थ, कॉन्फिडेंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन आवर चिल्ड्रन, बिकॉज जब हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस होगा देन दे विल फील गुड अबाउट ट्राइंग न्यू थिंग्स. वो नई चीज़ों को ट्राई करने में अच्छा महसूस करेंगे, एंड देन दैट इज़ व्हेन दे आर लाइकली टू डू द बेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर सर्कमस्टांसेस आर देयर. वो हमेशा अपना बेस्ट से बेस्ट करने की सोचेंगे. जो भी बच्चे मैंने देखा है अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होते ना, दे कैन बी वेरी अनश्योर. वो हमेशा सोचते रहते हैं कि करें या ना करें. दे मे नॉट फिट इन प्रॉपरली विद अदर्स. उनको लोगों के साथ और बच्चों के साथ फिट होने में, उनको और बच्चों के साथ घुलने मिलने में दिक्कत आती है. मे बी दे इवन गेट बुलीड और रैग्ड एट स्कूल. तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के साथ जब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है. और मैंने क्या देखा है कि द बेस्ट वेज टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन अवर चिल्ड्रन इज़ टू ऑलवेज मेक देम फील लव्ड. उन्हें हमेशा ऐसा महसूस करवाइए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कि वो कैसा भी परफॉर्म करें, दे आर ऑलवेज लव्ड बाय यू, एंड ऑलवेज कीप टेलिंग देम हाउ प्राउड यू आर ऑफ देम. नेवर एवर कंपेयर, क्रिटिसाइज और कंडेम देम. कभी भी उन्हें और लोगों के साथ कंपेयर ना करें, उन्हें क्रिटिसाइज ना करें, उन्हें कंडेम ना करें. ये 3 C's हमेशा अवॉइड करें उनके साथ. जैसा अक्सर होता है ना, पेरेंट्स कभी कभी बोल देते हैं गुस्से में कि अरे उसको देखो वो कितना अच्छा है, लुक एट हिम हाउ वेल ही और शी इज़ डूइंग. तुम क्यों नहीं वैसा कर सकते, वाई कांट यू बी लाइक देम. तुम तो हमेशा काम खराब ही करते हो, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस थिंग रॉन्ग, तुमसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, यू विल नेवर बी एनीथिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये सब करने से क्या होगा ना कि देयर सेल्फ एस्टीम विल बिकम वेरी लो, और उससे फिर क्या होगा कि वो लाइफ में कोई भी उनके लिए छोटा फेलियर होगा ना, उसको वो हैंडल नहीं कर पाएंगे. एनी स्मॉल फेलियर विल डायरेक्टली गो टू देयर हार्ट, So we always need to love and respect our children for who they are and empathize with them, help them to do the things by showing them what to do and then helping them, but don't overhelp them. बच्चों को सिखाइए क्या करना है, लेकिन उनको ओवरहेल्प मत करिए. Praise their efforts, not their outcomes. क्योंकि जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं उनके एफर्ट्स में, ना कि उनके नतीजे पे, तो उनको ये रियलाइज होता है कि भाई कॉन्फिडेंस इज नॉट जस्ट अबाउट सक्सेस और विक्ट्री. Confidence is all about putting your best effort, and feeling proud of it. So develop that growth mindset in them. और ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सब हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं. कैसे? By being a good role model for them. Because children are very smart, they are very aware of their surroundings and they are always learning from them. उनका दिमाग हमेशा उनके आसपास क्या हो रहा है वो उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, और वो उससे सबकॉन्शियसली सीखते रहते हैं. अगर वो आपको देखते हैं कि यू आर चीयरफुली डूइंग योर वर्क विद द राइट एटीट्यूड, बच्चे भी वही करेंगे. जब वो देखेंगे कि आप किसी को क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन नहीं कर रहे किसी के बारे में, तो वो भी वही करेंगे. When you are trying some new things and putting your best efforts and putting your best foot forward, when you are confidently doing your business activities, आप अपने confidently presentations कर रहे हैं, नए skills सीख रहे हैं, contacting skills, follow-up skills, and you are selling the products and
बिल्डिंग योर टीम्स। तो बच्चे क्या है ना कहीं पर आपको वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं आपसे, दे आर लर्निंग फ्रॉम यू। So when you believe in your business plan and your products and do the work necessary to reach your goals, तो बच्चे क्या है आपको ऑब्जर्व करेंगे और वो भी सेम एटीट्यूड जो है वो कैरी करेंगे अपने स्कूल या कॉलेज में, अपने काम में। सो मैंने ये देखा है कि एमवे बिजनेस में बीइंग कॉन्फिडेंट, टेकिंग न्यू चैलेंजेस इररिस्पेक्टिव कि वो हमारा एरिया स्ट्रांग है या नहीं है, ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस। एंड द मोर वी डू एंड द मोर वी ग्रो इन कॉन्फिडेंस, इट्स अ वैल्यूएबल स्किल जो कि हम अपने बच्चों को अपने आप पास कर रहे हैं। सिक्स्थ, ऑप्टिमिज्म। देखिए दोस्तों, विद सो मच हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड टुडे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चों के अंदर एक फीलिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म आए, दैट थिंग्स विल गेट बेटर फॉर देम एंड दे शुड ऑल्सो ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वरना होगा क्या कि अगर वो सब नहीं करेंगे, इफ दे डोंट हैव दैट फीलिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, सो देन इट्स वेरी लाइकली कि वो आगे चल के लाइफ में दे स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड, दे कैन इवन फॉल सिक फॉर स्मॉल नो रीज़न एट ऑल। और ये जो पेसिमिज्म है उससे होगा क्या कि उनकी लाइफ की जो आगे की रिलेशनशिप्स है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती हैं। सो वट एवर हैपन्स टू योर चिल्ड्रन इन लाइफ, यू वांट देम टू बिलीव, आप चाहते हो कि वो बिलीव करें कि थिंग्स विल गेट बेटर फॉर देम एंड दे शुड पुल देमसेल्व्स टुगेदर एंड कीप गोइंग नो मैटर व्हाट। तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, हाउ कैन वी टीच आवर चिल्ड्रन टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ? Couple of things that I have seen work very well is number one, regular exercise. बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज में डाल के रखिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि इट रिलीजेज एंडोर्फिन्स विच विल मेक देम फील बेटर, उनका मूड अच्छा रहेगा। जब बच्चे जो हैं वो फ्रेश एयर में बाहर गेम्स खेलते हैं, व्हेन दे प्ले गेम्स इन फ्रेश एयर, इट विल टीच देम दैट विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, इट इज़ ऑल टेम्पररी। प्रेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ फैमिली दैट टीचेस चिल्ड्रन टू मेडिटेट एंड प्रे, चाहे वो इट्स ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे, इट विल गिव द चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर ब्रेन्स एंड थॉट्स, वो उसे कंट्रोल कर पाएंगे। अनदर थिंग, आस्किंग योर चिल्ड्रन अबाउट देयर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, बड़े या छोटे कोई भी उनके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं, अगर आप उस पर ध्यान लेके जाएंगे उनका, इफ यू स्टार्ट पुटिंग फोकस एंड अटेंशन ऑन देम, देन दैट विल बेसिकली मेक द चिल्ड्रन फील बेटर अबाउट देयर ओन लाइव्स। और ऑल्सो इसी तरीके से अपने बच्चों को ऑलवेज ask them about the things they have which they should be feeling grateful for, because बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे they take things for granted around them, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं या they have so much to be grateful for, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे नहीं इसके बारे में, then they will not feel that they have so much in life, And the best way to make your children feel optimistic is by example. बच्चे आपका बिहेवियर वॉच करते हैं, आपकी सेल्फ टॉक वॉच करते हैं, बी अ मॉडल एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिमिज्म इन फ्रंट ऑफ देम, उससे वो बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, मैंने क्या देखा है कि हमारे एमवे बिजनेस में भी ये जो डेली डोज है ऑप्टिमिज्म का, ये बहुत ज़रूरी होता है, थ्रू प्रॉपर सेल्फ डेवलपमेंट, थ्रू द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, by having a proper physical exercise का routine, and when we get all the happy chemicals coming in our body, उससे क्या होता है कि हमारा business और attitude जो है वो बहुत अच्छा रहता है, because life में change is always there, लेकिन बहुत कुछ depend करता है हमारी ability पे on how we approach all the changes happening around us with optimism. तो इन 20 सालों में इस बिजनेस में मैंने यही सीखा है कि द वैल्यू ऑफ लुकिंग ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ डिस्पाइट ऑल द अप्स एंड डाउन्स इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। सेवेंथ, इंटेग्रिटी। वी ऑल नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और हमारे बच्चों के साथ इट मीन्स दैट वी ऑलवेज हैव टू बी अ एग्जाम्पल बाय लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मैंने क्या देखा है कि जिन फैमिलीज़ में बच्चों को पता होता है कि उनकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे मॉरल्स हैं जहाँ पर फैमिलीज़ जो है, पापा मम्मी जो है बिल्कुल विश्वास करते हैं। कुछ फैमिलीज़ में तो ये फैमिली वैल्यूज़ जो है, मॉरल्स जो है लिखे गए होते हैं एक जगह पे, एंड बच्चों को बहुत ही पता है क्लियर शब्दों में कि व्हाट दीज फैमिली वैल्यूज़ आर, व्हाट आर दोज कार्डिनल रूल्स जो उस फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको बच्चे अगर तोड़ेंगे कभी भी तो उनके कॉन्सिक्वेंसेज उनको भुगतने पड़ेंगे। ये सब बातें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे पता था कि अगर मैंने कभी भी कोई गलत काम किया तो मुझे पता था कि मेरे को घर में आने के बाद या स्कूल में कहीं ना कहीं पर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन अबाउट द वैल्यूज, रूल्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी काम अगर वो शुरू करते हैं तो उस काम को ख़त्म करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। आजकल के डिजिटल एरा में, इन टुडेज डिजिटल एरा, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन
what to post and what not to post on the social media and what standards they should be upholding while sharing their posts and their life pictures. कभी भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे which will later on make them feel very ashamed or very small. This is all about integrity. और दोस्तों मैंने क्या देखा है कि हमारे एमवे बिजनेस साइड में भी honesty, transparency, being open and trustworthy, that is the only way one can feasibly grow a big team and a big network which aligns with how the Amway business is supposed to work for everyone. Humility is also one of the most important qualities that we want in our children. Why? Because Jim Collins एक बहुत ही महान लेखक और विशेषज्ञ हैं who has studied more than 1500 top companies and analyzed their CEOs. He found out that in level 5 leadership, जो कि highest level of leadership होता है corporate world में, there is always a personal humility along with professional competence in the leaders. तो ये जो humility होती है ना, विनम्रता जिसे हम कहते हैं, it teaches our children to be modest without having any arrogance or pride about their success कि देखो मैंने कितना हासिल कर लिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. And they always learn to give credit to other people around them like their teachers, अपने पेरेंट्स को, और जिन्होंने भी उनकी हेल्प करी है वो उनको क्रेडिट देना सीखते हैं. It is very important that children should be humble about their achievements no matter how big they are. उनकी ईगोस चेक में रहती हैं. अदरवाइज आज की दुनिया में क्या हो गया है कि ब्रैगिंग और शो ऑफ करना इट सीम्स टू बी द नॉर्म एवरीवेयर. और बहुत सी बार क्या होता है ना, बच्चे दे फील एंटाइटल्ड टू सर्टन थिंग्स और एडवांटेजेस इन लाइफ कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बिकॉज मैं नंबर 1 हूँ. दे डोंट रियलाइज दैट दे हैव टू अर्न एंड वर्क फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन फील कि उनके कोई भी स्पेशल राइट्स या कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस लाइफ में नहीं है. एवरीथिंग दैट दे हैव टू क्वालिफाई एंड अर्न. इससे क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं वो विनम्र रहते हैं. दे आर हम्बल, दे कैन लर्न फ्रॉम पीपल नो मैटर हु दे आर, एंड दे कैन कीप ग्रोइंग पर्सनली एंड इंटेलेक्चुअली. एंड ऑल्सो ये भी देखा गया है कि जो बच्चे हम्बल रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, दे ऑलवेज हैव ट्रू फ्रेंड्स, उनके सच्चे दोस्त होते हैं, बेहतर दोस्त होते हैं. दे आर ऑलवेज हैप्पियर इन लाइफ and they're always appearing very quiet and confident, very self-assured in their own abilities कि मेरे पास क्या है, मैं अंदर से क्या हूँ, मुझे पता है, मुझे किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है. और दोस्तों यही क्वालिटी जो है we have found is most helpful also in our Amway business. When things go right, जब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, when we get success, we always give credit to our team, our business partners. लेकिन if things go wrong, अगर चीज़ें गलत जाती हैं, then we always take a hard look at ourselves and take full responsibility without blaming anyone else, you know. In our business also, we never feel entitled to any special treatments in this business, but we always feel that we need to qualify for it. और हर business achievement के बाद मैं तो personally क्या करता हूँ, I always eat some humble pie. उसे कहते हैं कि मैं हमेशा अपने आप को थोड़ा सा झुका लेता हूँ हर business achievement के बाद, because it's very natural for people to sometimes start bragging or showing off after every business achievement. और ये सब हमें करते रहना चाहिए हमेशा, to show to our next generation that it is not our mistakes that define us, but how we rise above the mistakes which shows our attitude. और यही चीज़ हमें बच्चों को सिखानी है so that they become accountable to their actions and they can start correcting themselves more efficiently in their life and in their work. तो दोस्तों लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग. हम लोग जो है हमेशा अपने इस लाइफ में काम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं. वी कीप वर्किंग, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, मेकिंग मैनी मिस्टेक्स एज वी गो. नो वन इज़ परफेक्ट. और मैंने ये देखा है कि ऑल्दो वी डोंट ऑलवेज मेक द राइट डिसीजन, बट सर्टनली जो भी हम लोगों ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में मिस्टेक्स करी हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है. एंड हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज 20/20 आफ्टर ऑल. लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली क्या है कि हम लोग जो है अपनी हर मिस्टेक से एक बेहतर इंसान बने हैं. वी हैव ऑलवेज बिकम अ बेटर पर्सन. सो स्टार्ट बीइंग अ रोल मॉडल इन बिजनेस एंड इन लाइफ दैट योर चिल्ड्रन एंड योर टीम मेट्स कैन बी प्राउड ऑफ. और ये सब करते हुए व्हाट यू विल फाइंड आउट इज दैट गुड पेरेंटिंग एंड गुड लीडरशिप, दे आर बोथ रेसिप्रोकल, दे बोथ गो हैंड इन हैंड. दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. दोनों चीज़ें जो हैं एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं. दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और बेहतर बनाते हैं. तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी इनसाइट्स जो हैं दे हैव प्रोवाइडेड यू विद सम इंस्पिरेशन टू मेक योर बिजनेस एंड योर पेरेंटिंग अ लिटिल बिट बेटर. हैव अ ग्रेट वीकेंड. बाय फॉर नाउ. वी लव यू ऑल. टेक केयर.